Hello everyone, Happy New Year to you all. The video of yesterday was cut due to some problems. So today I am again explaining limit of civil disobedience movement. All of you know that it lost its momentum in 1934 and rich parents, businessmen and ladies took part in this movement enthusiastically. The relation of poor farmers and working class with Congress was uncertain, but Muslims and Dalit people did not take part in civil disobedience movement. Now, what will you write in limit of civil disobedience movement? First point, Dalit participation in civil disobedience movement remained limited as Congress had ignored them for fear of offending the Sanatanis. Point 2. Both Gandhiji and B.R. Ambedkar tried to uplift them. Third point. Gandhiji called them Harijan and B.R. Ambedkar formed depressed class association. Next point. B.R. Ambedkar demanded separate electorate for Dalit. गांधी was against separate electorate. जब बी आर अम्बेडकर महात्मा गांधी के संग सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन गई तो उन्होंने ये डिमांड कि दलितों के लिए अलग इलेक्टोरेट हो ब्रिटिश के सामने रखी। ब्रिटिश लोग उनकी इस बात को मान गए और लेकिन गांधी जी हंगर स्ट्राइक पर चले गए और फिर गांधी जी की बात माननी पड़ी और वहाँ पर गांधी जी was against separate electorate. Then Pune Pact was signed in 1932, under which the depressed classes were allotted reserved seats in provincial and central legislative councils. Even the Muslims did not respond to call for civil disobedience because the association of Congress with Hindu Mahasabha, communal clashes, demand of separate electorates for the Muslims, fear of losing their identity and culture under the Hindu majority. मुस्लिम्स को इस बात का डर था कि जो कांग्रेस है वो हिंदू महासभा की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो रही है, ज़्यादा उसकी फेवर कर रही है, तो कहीं उनकी फ्यूचर में आइडेंटिटी और कल्चर लॉस्ट ना हो जाए, इसलिए उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। नाउ एक क्वेश्चन जो आ सकता है जैसे एग्जाम में, व्हाई डिड गांधी जी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? एक्सप्लेन एनी 3 रीजन्स. You should write first reason to launching civil disobedience movement heading. First point, economic depression of 1930. Point 2, arrival of Simon Commission without any Indian representative. Third point, vague offer of dominion status by the British failed to satisfy Indians. Fourth point, decision taken in Lahore session of Congress in 1929. Last point, tax on salt by Britishers. हमें लगता है ये चारों ही पॉइंट आप लोगों के समझ में अच्छी तरह आ गए होंगे। One more important question. Explain the measures taken by Gandhi ji to eliminate the problem of untouchability. अनटचबिलिटी को दूर करने के लिए गांधी जी ने क्या किया? तो इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड। महात्मा गांधी ने कहा कि अगर अनटचबिलिटी को ख़त्म नहीं किया गया, छुआछूत को समाप्त नहीं किया गया, तो स्वराज 1000 साल तक और नहीं आ पाएगा। Point number 2, he called the untouchables Harijan or the children of God. उन्होंने अनटचेबल पर्सन को हरिजन या चिल्ड्रन ऑफ गॉड कह के
बुलाया। पॉइंट नंबर 3, ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देयर एंट्री इनटू टेम्पल एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल, बैंक, रोड्स एंड स्कूल्स। उस समय जो हरिजन लोग होते थे, जो दलित क्लास होती थी, वो गांव के कुएं को नहीं छू सकती थी और रोड पर नहीं चल सकती थी। तो हरिजन ना रोड पे जा सकते थे, ना उनके स्कूलों में। गांधी जी ने इसकी उनकी एंट्री टेम्पल में जाने के लिए उनको और उनके पब्लिक वेल तक पहुंचने के लिए एक सत्याग्रह किया। He himself cleaned toilet to dignify the work of Bhangi, the sweepers. And last point, he persuaded upper class to change their heart and give up the sin of untouchability. उन्होंने अपर क्लास से अर्ज किया, विनती की कि वो अपने हार्ट को चेंज करें और अनटचबिलिटी के जो पाप है इसे छोड़ दें। Last section of the chapter is the sense of collective belonging. लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग इंडिया में कैसे आई? तो इसमें लिखा है, नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिगेन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ सेम नेशन। जब लोगों को ये बिलीव करने लगे कि वो एक ही नेशन के पार्ट हैं, तो इस तरह से नेशनलिज्म स्प्रेड होने लगी। व्हेन दे डिस्कवर सम यूनिटी दैट बाइंड देम टुगेदर, जब उन्होंने कुछ इस तरह की यूनिटी को देखा, कुछ ऐसी यूनिटी देखी जो उन सबको बाइंड करती है एक होने में। बट हाउ डिड द नेशन बिकम द रियलिटी इन द माइंड ऑफ पीपल? ये तो उसकी थी, लेकिन रियलिटी में लोगों ने कब नेशनलिज्म की या नेशनल फीलिंग उनमें कब आई? तो दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। पहले तो इससे आया कि सब लोगों ने मिलकर जो लड़ाइयाँ लड़ी इंडिया के लिए, इंडिया की फ्रीडम के लिए, कुछ तो उससे आया। बट देयर वर ऑल्सो ए वेराइटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस, और भी बहुत से कल्चरल प्रोसेस से जिसने लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर किया कि वो सब इंडियन हैं। तो इसमें हम कहेंगे हिस्ट्री एंड फिक्शंस, folklore, song, popular prints, symbols, all played a part in making of nationalism. हिस्ट्री, सबकी हिस्ट्री सेम थी। एक सी स्टोरीज जो थी पुरानी, फोकलोर थे, सॉन्ग थे, सिंबल थे, इन सब चीज़ों ने एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया नेशनलिज्म की फीलिंग को लाने में। तो इसमें हम क्या है, एक जैसे इस क्वेश्चन आए, द डिस्क्राइब द कल्चरल प्रोसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशंस। इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं? नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ सेम नेशन, व्हेन दे डिस्कवर सम यूनिटी दैट बाइंड देम टुगेदर। सेकंड, देयर वर वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस थ्रू विच nationalism captured people's imagination. Allegory of Indian nation. Allegory all of you know, जैसे कि जर्मनी की जर्मेनिया, फ्रांस की मेरीन, मतलब एक लेडी का फिगर जिसको हम कोई नेशन मान लेते हैं, तो इंडिया की भारत माता। Allegory of Indian nation, भारत माता helped create an image with which people identify the nation. भारत माता को देख कर ही हम कह सकते हैं कि उसकी जो पोर्ट्रेट है उसे देख के कि ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट, डिवोशन टू द मदर फिगर केम टू बी सीन इन एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म। जो भी अब जो मदर फिगर है, हमने देखा था कि फ्रांस में फादर लैंड माना जाता है, लेकिन इंडिया में मदर लैंड माना जाता है। तो उसके लिए जो भी डिवोशन लोग कर रहे हैं, उससे भी बहुत नेशनलिज्म की फीलिंग आई। इट वॉज एसेंशियल टू प्रिजर्व फोक traditions, folk tales in order to discover one's national identity and restore a sense of pride in one's part. ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें अपने पहले के पास्ट के पर अगर हमें थोड़ा सा भी प्राइड फील करना है, तो हम उस समय की स्टोरी सुने, उस समय के सॉन्ग सुने, उस समय लोगों ने जो भी अचीवमेंट किए उस पर फख्र महसूस करें, तो उससे भी नेशनलिज्म की फीलिंग आती है। नेशनल फ्लैग डिजाइन बाय गांधी जी एज स्वराज फ्लैग,
represented the Gandhian ideal of Swaraj, self-help. Carrying the flag, holding it aloft during marches became a symbol of defiance. Reinterpretation of past also developed the interest of people in nationalist histories. Now, one more question is there. Explain the major factors which promoted the sense of nationalism in the Indians. First heading is United Struggle. The most important factor responsible for arousing the sense of nationalism among the Indians was the united struggle against the Britishers. Second, cultural process. History and fiction, folklore and song, popular prints and symbols all played a part in making of nationalism. Point number 3, Bharat Mata. The identity of India came to be visually associated with the image of Bharat Mata, which was created in 1870 by Bankim Chand Chattopadhyay, who wrote Bande Mataram as a hymn to the motherland. Inspired by the Swadeshi movement, Avninath Tagore painted his famous image of Bharat Mata. Next heading, Revival of Indian folklore. The idea of nationalism was also developed by reviving the Indian folklore. In late 19th century, India nationalists began recording folk tales sung by bards, and they toured villages to gather folk song and legends. क्या होता था स्टार्टिंग में कि लोग सब जगह जाते थे और हर जगह के फोक सॉन्ग वगैरह रिकॉर्ड कर लेते थे और जगह जगह उसको बजाते थे. तो जो लोग इलिटरेट होते थे वो उनके मन में नेशनलिज्म की फीलिंग इन सॉन्ग को सुन के, इन स्टोरी को सुन के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाती थी. लास्ट, रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री. By the end of 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be taught about differently. The British saw Indian as backward and primitive, incapable of governing themselves. British समझते थे कि इंडिया के लोग बहुत ही बैकवर्ड हैं, ये अपने आप को रूल नहीं कर सकते हैं. In response, Indian began looking into the past to discover. इसके अगेंस्ट क्या जो इंडियन थे इन्होंने अपना पास्ट में सर्च करना शुरू किया एंड डिस्कवर इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट्स, और इंडिया की ग्रेट अचीवमेंट को पता लगाया. They wrote about the glorious development in ancient time. एंशियंट टाइम में जो भी कुछ डेवलपमेंट हुए उनको फिर उन्होंने लिखा. इससे लोगों के मन में अपने कंट्री के लिए देशभक्ति की जो फीलिंग है वो डेवलप हुई और फिर सब लोगों ने मिलकर ब्रिटिश लोगों पर विजय प्राप्त की. ये आपको ये सेकंड चैप्टर कैसा लगा, आपके यूज़फुल है या नहीं, ये आप सब हमें कमेंट में करके बताएं. धन्यवाद. नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेसन. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.